ये लेडी ऑफ लाइट चैरिटेबल ट्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं. आई एम द फाइनेंशियल कंट्रोलर एंड द ट्रस्टी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. So, I am a chartered accountant, and for the last 25 years, I've been into practice. This is a charity that we opened in 2016. It was because I had visited a few bastis of Shia community in Amroha, and I found that most of the ladies were into beedi making. I mean, the ladies who were, some of the bastis were so underprivileged that they were into beedi making, and we wanted somehow to give them an alternative to pull them out of this vocation. So besides so many other mission and vision statements, there are, so my basic aim was to pull them out of beedi making. Besides this, okay. A women's group. We recycle fabric scrap into utility items. Try our creativity on your fabrics or buy from us to support us. Ambrose, we recycle, you reuse. तो बेसिकली अमरोहा की एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे कॉटन की वेस्ट का डंपिंग होता है. तो इट हैज़ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट डंपिंग ग्राउंड्स इन नॉर्थ इंडिया. तो वी वांटेड टू डू अ डुअल pronged strategy to kill both these issues. One was the dumping of cotton waste, and second was ladies were into beadi making. So giving them an alternate source of employment was to just, which we felt was the best way to do, was to bring them to a place where they could learn stitching, they could employ their own skills which they had over the last so many years. Traditionally, they were into hand embroidery, etc. So these are some of the designs that our women have prepared. Some of them are such that they cannot even sign when we pay them their salaries. But then they have created all this stuff from katrans that we have collected from factories and nearby areas. So there are boutiques, there are factories, and now that we have already gone into the basic, the small communities. Yeah, even the smallest katran has been utilized to create objects like this. These bags, these are tables, placemats, etc. This is one bag which you can see it is also made out of katrans, sewn together. Now, since we have collected tons and tons of katrans, it is very difficult for us to manually handle it. So now we have identified a manufacturer of machines who can process the cottons into paper. So this is one where we have tried our own cotton. This particular cotton strip was given, and this is the product that has been created. So it is a bag of 250 GSM. So why I am here is that in case anybody is interested in being an investor, so it's a project of 50 lakhs in which we can buy the machine, we can have the working capital for 1 year, and later on we can convert it into a still greater project by deploying machines in a number of places. So it requires only the katrans, the waste, and water, and some organic resins. The rest can be done manually. I mean, it can be handled on the basis of machines, as well as manual making of products from bag, like the products from paper, like this. We've even tried our hands at making pencils out of this. Even diaries, souvenirs, etc. can be built out of all this waste. These are environmental issues in byproducts. It is only water that gets wasted. Otherwise, we try to use some insurance plan in the name of their husband is given, so that in future if he expires, so they will get the benefit. So it's a 1 lakh rupee term insurance plan which is given as a benefit for their long-term connection with us. So these are some of the things. Besides this, waste management is one thing which is very close to my heart. So I have plans to tie up with people who are there in Okhla, Batla House, etc. because we've got a lot of much interested in taking out जुलूस, लेकिन जिन सड़कों पे से वो जुलूस जाता है इतनी गंदी रहती हैं वो सड़कें, उसके आसपास इतनी गंदगी और कूड़ा भरा रहता है, किसी को सफाई की कोई चिंता नहीं है. तो मुझे लगता है अगर मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह इस तरफ भी कुछ काम करेंगे. आपका शुक्रिया.
नमाज ब्रेक के लिए इंशाल्लाह लंच के लिए हम लोग जाएंगे, लेकिन दूसरे सेशन में दो बड़ी अहम तकरीरें हैं। एक मिनट जस्ट, आज के हालात में एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें क्या लीगल राइट्स मिलते हैं जिससे हम अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उसके लिए जस्टिस शबीर हसन साहब हैं, इनकी तकरीर होगी। जितने भी आप स्कूल चला रहे हैं, आपकी सोसाइटी आपकी रजिस्टर्ड होगी या किसी आप सिस्टम के थ्रू आप चल रहे होंगे, तो किस तरह के इनकम टैक्स की लायबिलिटी आप पे बन सकती है, क्या क्या नॉर्म्स हो सकते हैं उसके लिए। नजमी भाई की एक पूरी पीपीटी है। नजमी भाई चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर वडोदरा और अहमदाबाद रिटायर हुए IRS ऑफिसर हैं, उनकी एक बड़ी अच्छी यहाँ पे तकरीर होगी। तो हम लोग अभी लंच के लिए चलते हैं और 2 बजे दोबारा इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। There was one question for Sister Sabra. She was talking about an investment of 50 lakhs. Are you looking for an institutional investor or an individual investor? And what's the return on investment, please? What's the return on investment? Before 3 years, please don't add. Sure, after that. 10 years, minimum 10%. Okay, lovely. So you talk to me on this 50 lakhs. गुजारिश है कि पिछले सेशन में थोड़ा वक्त हम लोगों ने ज़्यादा लिया इंडिविजुअली। इस बार हम ध्यान रखें क्योंकि जितने लोग हैं सबको इंशाल्लाह हमें सुनना है, और 10 मिनट का हम ख्याल रख के चलें, और घड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बगल में ही है तो आसानी होगी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में। दूसरे सेशन की शुरुआत में मैं वफ़ा अब्बास साहब, अंबर फाउंडेशन, लखनऊ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वफ़ा अब्बास है और अंबर फाउंडेशन नाम से एक ट्रस्ट मैं चलाता हूँ लखनऊ में। चलाता क्या हूँ, बेसिकली ये अल्लाह चलवा रहा है पिछले कुछ सालों से शुरू हुआ है। पहले भी काम करते थे बट पहले ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं था, तो 3-4 साल से इसको ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया। और शुरुआत इसकी एक उस्तानी जी से हुई। एक उस्तानी जी थी, वो मिली पहली बार करीब 2.5 साल पहले, 3 साल पहले। तो उन्होंने कहा एक चश्मा दिलवा दो। तो नॉर्मली लोग पैसा मांगते हैं, किताबें, इस तरह की चीज़ें मांगते हैं। चश्मा किसी ने पहली बार मांगा, खैर चश्मा दे दिया गया और चली गई। फिर मुलाकात हुई 1 महीने बाद, ऑफिस आई, चाय वाय पी, तो बहुत खुश थी। और बातों में पता चला कि उस चश्मे की वजह से उनकी 2,500-3 हज़ार की इनकम जो कुरान पढ़ा के गुजारा करती थी वो फिर से शुरू हो गई। तो मैंने डिस्कस किया अपनी टीम के लोगों से, तो ये लगा कि शायद एक बड़ा तबका है जो 1,000-1,500 रुपये का चश्मा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो हम लोगों ने एक कैंपेन पहले सोशल मीडिया पे शुरू किया, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया। करीब 500 लोग, तो एक कैंप लगा 3 दिन का। उन 500-600 लोगों की टेस्टिंग हुई, उसमें लगभग 350-400 चश्मे दिए गए, 20-25 केसेस ऑपरेशन के निकले। फिर उनके ऊपर 2 महीने बाद स्टडी किया तो पता चला कि उसमें जो वर्किंग थे उनके काम के घंटे बढ़ गए, जो घर पे बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे वो पढ़ाने लगे। तो ये सब देखने के बाद फिर हम लोगों ने 2,000 चश्मे, फिर 5,000, फिर 10,000, ऐसे करते करते 1.5 साल में करीब 32,000 लोगों की टेस्टिंग करी। उसमें से 25,000 लोगों को चश्मे दिए गए और लगभग अभी तक के 2,000 के आसपास ऑपरेशन लखनऊ में हो चुके हैं। तो ये सब देख के ये लगा कि लखनऊ में एक बहुत बड़ी तादाद है जो 1,000 रुपये का चश्मा अफोर्ड ना कर पाने से अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत सारी परेशानियों से गुजर रही है। और वो परेशानियाँ उसकी सिर्फ चश्मे की वजह से बढ़ रही थी, जो शायद थोड़ी बहुत हम लोग अल्लाह की वजह से कम करवा पाए। फिर इतना डेटा जब आया अपने पास तो ये हुआ कि और क्या किया जाए। तो उस डेटा का हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ मिलान शुरू किया। तो एक आयुष्मान कार्ड स्कीम है, आयुष्मान कार्ड सर्च किए गए तो लगभग 3,000 फैमिलीज़ के उसमें से, और किसी के 3 किसी के 5 ऐसे करके लगभग 8,000 आयुष्मान कार्ड लोगों को निकाल के दिए गए। वो 8,000 आयुष्मान कार्ड से उन लोगों ने तब से आज तक के काफ़ी लोग मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने मेदांता जैसे हॉस्पिटल तक में अपना हार्ट का ऑपरेशन करवाया उससे, तो काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा हुआ। राइट टू एजुकेशन के एडमिशन उसी में से जो गरीब तबका मिला जिसके डॉक्यूमेंट पूरे थे, उसके लगभग 2,000 लोगों के राइट टू एजुकेशन के फॉर्म भरवाए गए। फिर इसी सिलसिले में शुरुआत हुई, कुछ बच्चे मिले जिन्होंने कहा कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करना चाहते हैं। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कोचिंग है धेय IAS, जो दिल्ली वाले होंगे जानते होंगे, बड़ी कोचिंग है। तो धेय IAS के साथ टाई अप किया हम लोगों ने, और धेय IAS के साथ टाई अप करके यूपी सिविल सर्विसेज के लिए PCS एग्ज़ाम रहता है वहाँ का, उसमें 20% रिजर्वेशन है लड़कियों का। पूरे यूपी से हम लोगों ने 300 लड़कियों को ढूंढा। वैसे वो ओपन फॉर ऑल था, सभी के लिए था, तो उसमें शिया भी थे, सुन्नी भी थे, हिंदू कम्युनिटी के बच्चे भी थे। तो हमारा पहला बैच जो 2022 में पढ़ने गया वो 2023 में उसका रिजल्ट आया। 13 लड़कियों ने हमारे PCS क्वालिफाई किया था, जिसमें 3-4 बच्चियाँ SDM थी, डिप्टी SP थी, ऐसे करके टोटल 13 बच्चियाँ निकली। इस साल भी हमारे 45 लड़कियों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हुआ है।
मेंस का एग्ज़ाम दिया है और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं मेंस का रिजल्ट आएगा। इसमें भी 6-7 बच्चियां शिया हैं इस बार। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अगले साल का कैंपेन हम लोग शुरू करेंगे, तो जो भी ग्रुप वगैरह होगा उसमें इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ऐसे जो भी लड़कियां हों जो करना चाहती हों सिविल की तैयारी, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं, तो आप लोग उनको सजेस्ट करिए। क्योंकि हुआ कि हम लोगों ने कैंपेन बहुत चलाया, बट इस पूरे में करीब 6-7 हज़ार बच्चों ने एग्जाम दिया। कोचिंग का कहना था कि हम 50% कट ऑफ वालों को नीचे नहीं लेंगे। 50% में शिया बच्चे बहुत कम मिले, मुश्किल से 15-20, 30-40 फॉर्म भरते थे, 10-5 क्वालिफाई होते थे, और उसमें फिर हम लोगों को 10% कम करा के भी लेना पड़ता था कि थोड़ा सा कम से कम उनको भी मौका मिलना चाहिए। ऐसे ही नीट के लिए हम लोगों ने सर टाई अप किया था। इंटेलिजेंस कोचिंग है, मेहंदी साहब बैठे हैं यहाँ पे। इसमें भी लगभग 1100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, लेकिन बहुत मुश्किल से 35 बच्चे मिले, जिसमें से 25 ने इनकी कोचिंग को ज्वाइन किया है। इसमें भी अगर नीट के कोई बच्चे यूपी में पढ़ना चाहते हो तो आप अभी भी सजेस्ट कर सकते हैं, हम लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हम लोग इस तरह के एग्ज़ाम्स के थ्रू ऐसे बच्चों को मौका दें, कोचिंग प्रोवाइड कराएं उनको, ताकि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। वैसे ये प्रोग्राम सबके लिए ओपन है, लेकिन हमारे ओवरऑल लखनऊ में देखा जाए तो लगभग 50,000 बेनिफिशरीज आज की डेट में हैं लखनऊ के अंदर। इसमें से अच्छा एक डेटा मैं आपको और बता दूं, इन 50,000 बेनिफिशरीज में से 20% ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है आज की डेट में, जो पड़ोसी का नंबर देते हैं अपने कांटेक्ट करने के लिए। 30-40% ऐसे हैं जो कीपैड का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जबकि लगभग सब फ्री है। इंटरनेट आज की कोई वैल्यू नहीं इसकी, पैसे के मामले में बल्कि फ्री सा है। तो कहने का मतलब ये था कि जो जेनजी जनरेशन है हमारी, जिसको जेनजी कहा जा रहा है आजकल, तो मैंने ये महसूस किया कि उनके अंदर अवेयरनेस की बहुत कमी है। और हमारे जैसे रजवी भाई ने कहा अभी, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो उनको मेंटली तैयार नहीं कर पा रहे हैं। आप मुस्लिम मोहल्लों में जाएं, शिया मोहल्लों में जाएं, बिरयानी, कबाब, ये सब दुकानें खुली रहती रात भर, और लोग 2 बजे तक 4 बजे तक घूम रहे हैं, टहलने किसी कुछ नहीं पड़ी है। मतलब बहुत माजरत साथ कहना चाहूँगा, मैंने लखनऊ के कई उलेमाओं से इस बारे में कांटेक्ट किया पीछे, और उनसे कहा कि मौलाना साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी जो मजलिसें होती हैं उसमें आप लोगों को ये कसम दिलाइए कि आप फर्श अज़ा पे आए हैं तो 5 मिनट की अपनी स्पीच में रखिए उसको, कि अगली बार जब आओगे यहाँ पे तो अपने बच्चे का नंबर 5% बढ़ा के लाना। तो मौलाना हसनैन बाकरी साहब ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और मैं देखता हूँ कि लगभग हर मजलिस में वो कहते हैं, और भी लोगों ने किया, लेकिन एक मेजॉरिटी ने उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है। तो ये सब कोशिशें हम लोग की चल रही हैं। आगे हम लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने जितने रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हम लोग कहीं से डोनेशन अभी तक दे लेते हैं, अपने जो बिज़नेस फंड है मेरा, उस बिज़नेस फंड से ही कुछ पैसा निकाल के काम करते रहते हैं, उसको आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। और अगर आज की मीटिंग जैसे कि मैं आप लोगों को सुनने आया था यहाँ पर, तो मेरी जो स्कीम्स हैं अगर उसमें कुछ बेनिफिट हम आपके लोगों को पास ऑन कर सकें तो मोस्ट वेलकम। और आपकी जो स्कीम्स होंगी, मैं बासुर मिर्ज़ा साहब से कहूँगा कि कोई ग्रुप बने, उसमें जैसे भी किसी ने सजेस्ट किया था कि अगर किसी की डिमांड आती है ग्रुप में डाल दिए, कोई पिक कर ले, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी अगर कोई ऐसा कोलैबोरेशन होता है, कोई ऐसा ऑफ़र हम दे सकते हैं या ले सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी है, क्योंकि इतने इंटेलेक्चुअल्स को एक साथ इकट्ठा करना अल-किसा फाउंडेशन और मासूम रज़ा साहब के लिए एक, मतलब मैं उनको कांग्रेचुलेशन देता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम है, और इतने सारे लोगों को एक साथ लाना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और एक बात मैं और कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा, 1 मिनट है अभी। अच्छा ओके। मेरी अपनी कंपनी है प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग की, तो मैं उसकी तरफ से ऑफर देना चाहता हूँ। हम तो नेशनल अवार्ड विनर है इंडिया में 2 साल से। आप सभी के NGOs को, सभी के ट्रस्ट को अगर कोई प्रिंटिंग मटेरियल की डिमांड होती हो, रिक्वायरमेंट होती हो, तो मैं आपको मार्केट से काफ़ी कम एज ए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन के तौर पे सपोर्ट करूंगा उसमें, और वो आप लोगों को मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। अल-किसा फाउंडेशन में भी हम लोग उस प्रिंट मटेरियल सप्लाई करते हैं। और मैं मौलाना साहब से कहना चाहूँगा कि आगे जो ट्रम्प टैरिफ है उसको थोड़ा सा हम लोग अपनी तरफ से आपको 10% कम करके देंगे, ताकि आपकी किताबें सस्ती हों और ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन हिंदुस्तान के हर स्टेट से लोग आए हुए हैं, चाहे बिहार लें, बंगाल हो, इवन दो केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, हर जगह से लोग आए हैं। तो मैं बिहार से जनाब जुल्फ़िकार हैदरी साहब को बुलाना चाहूँगा। आप हुसैनगंज एक कस्बा है, और हुसैनगंज के बारे में बताऊँ कि एक ज़माना था कि वहाँ से कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हुआ करते थे बिहार गवर्नमेंट में, लेकिन उसके बाद शायद वो हिस्ट्री ही बन के रह गई। तो ज़फ़र हुसैन साहब का ताल्लुक़ वहीं से था, और एक बहुत बड़ा एक स्कूल चल रहा है वहाँ पे जो गवर्नमेंट एडेड है, और तकरीबन बहुत अच्छी तादाद बच्चों की है। और आप एक प्रोफेशनल हैं, आप सेक्रेटरी हैं उस ट्रस्ट के, तो मैं चाहता हूँ आप आएँ प्लीज़। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ जुल्फ़िकार हैदरी, एंड मासूम साहब ने एक ऐसा इंट्रोडक्शन दे दिया कि मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या कहना चाहिए। कि एक
ब्लेसिंग थी उसके अंदर में एक वार्निंग भी थी. सो आई एम टेकिंग इट वेरी पॉजिटिवली. And here I am representing Muhammad Saleh High School and Welfare Trust. So almost it's going to touch 100 years. It was established in 1935 by my grandfather and his brother. So I can see very familiar faces जो यहाँ बैठे हैं, directly indirectly linked हैं हुसैनगंज से, इस स्कूल से. And जैसा इन्होंने बताया, it was an epitome in that region. और जवार साहब was not only one of the cases, मासूम भाई. Many IASs, IPSs and post partition पाकिस्तान में हबीब बैंक के चेयरमैन, बांग्लादेश में सिविल सर्विसेज के हाई कमीशन, they were all a part of the same group. Unfortunately जो I came here as a participant, मेरे पास कोई PPT नहीं है और इन पेजेस में मैंने वही चीज़ें लिखी हैं जो आप लोग सुबह से बता रहे हैं. Because I came here to collect information. तो जो चीज़ निकल के आई फ्रॉम योर साइड, एंड मैम आप लोगों ने जितनी बातें बताई हैं, तो कमिंग एज ही सेड, मतलब कुछ डिफ्रेंशिएट किया. मुझे लगा कि पहले वाली जो सभा थी वो लाइट क्लास की थी और अब जो है वो पसमानदा समाज आ रहा है. सो सॉरी नजमी भाई, बट दैट इज़ व्हाट हाउ आई एम फीलिंग. बिकॉज अभी मैंने अपने लंच पीरियड में ये कहा था कि भावनगर, जामनगर, गुजरात, साउथ, एंड वाइल वी आर हियरिंग दोज केसेस वजीफ़ा, तो हम अपने आप को बड़ा मतलब गर्वित फील कर रहे थे कि आई सेड व्हेन आई केम हियर, तो मुझे ये लग रहा था कि कोई एक मजलिस महफिल टाइप का कोई एक इनकाद होगा जहां हम सर झुका के बैठ के सुनेंगे और अपना ओपिनियन नहीं रखेंगे. बट हियरिंग आउट इवन फ्रॉम द फेरर सेक्सेस कि कुछ मैम्स ने जो बातें बताई हैं, दे आर एक्चुअली आई ओपनर फॉर द कम्युनिटी. फ्रॉम द प्लेस वेयर आई कम, अभी मैं गुड़गांव से आया हूँ, दैट इज़ नॉट द प्लेस आई बिलोंग टू. वहाँ तो मैं मतलब एक किराए की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ. बट माई रूट फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग, शायद ऐसी गैदरिंग, मासूम भाई मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. एंड नेक्स्ट टाइम आई विल बी मीटिंग यू मोर फ्रॉम द ग्रुप्स कि हम और क्या करें. भाई साहब लखनऊ से हैं, मैं बिहार से हूँ. ये जो बेल्ट है वेस्टर्न यूपी के बाद से जो शुरू होता है, इट स्टिल नीड्स मोर रिसोर्सेज, मोर पीपल. मैं जिस स्कूल, जिस इदारे की बात कर रहा हूँ, उसके पास फंड की कोई कमी नहीं है. इट हैज़ अ वेरी लार्ज लैंड, इट हैज़ अ वेरी ह्यूज बिल्डिंग. गवर्नमेंट एडेड स्कूल है जिसमें तकरीबन 50 लोग हैं, जिसमें 40 लोग सरकारी सैलरी पाते हैं, मोर देन 1 लाख पर मंथ. इट्स अ ह्यूज सैलरी. एवरीथिंग इज देयर. बिल्डिंग्स इतनी बड़ी हैं और हर साल हम लोग बिल्डिंग एक्वायर कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज बना रहे हैं. एवरीथिंग इज देयर, बट द स्पिरिट इज मिसिंग. जहां हम इस मजमे से, मोहतरम मजमे से कुछ ढूंढना चाहेंगे, आई हैव रिक्वेस्टेड नजमी भाई, आई विल बी लुकिंग फॉर मोर गाइडेंस कि ही आस्क्ड मी अबाउट द पॉपुलेशन भी कुछ ऐसी नहीं है. आसिफ साहब आप भी जानते हैं, इन्होंने पूछा कितनी पॉपुलेशन है. तो मैं जिस बस्ती से बिलोंग करता हूँ, हुसैनगंज, ज़मींदारी बस्ती रही हुई है. आज के दिन में अप्रॉक्सीमेटली 100 घर होंगे वहाँ पे. पोस्ट पार्टीशन मोस्ट ऑफ द पीपल मूव्ड आउट. और मुहर्रम में 500 लोग होते हैं, आम दिनों में 100-125 लोग ऐसे होते हैं. जो बड़ी बस्तियाँ हैं जिनको आप गोपालपुर, कुजवा ये बोलें, तो अदर देन मुहर्रम, बिकॉज मोस्ट हैव माइग्रेटेड आउटसाइड, हम लोग 1000-1500 का बनाएंगे सीवान डिस्ट्रिक्ट के अंदर में. द प्रॉब्लम ओवर देयर इज कि MS हाई स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड 100 years बैक. इट्स अ हिस्ट्री एंड इट्स अ गोल्डन हिस्ट्री. इसका तस्करा जो है वो लिखा गया है. आई हैव सीन इन टेस्टिमनीज जहाँ पे इस स्कूल को टेस्टिफाई किया गया है. इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा वेल फंडेड ग्रुप्स वहाँ स्टार्ट हुए थे. बिलाल चैरिटी फाउंडेशन फ्रॉम गोपालपुर, मौलाना सईद अख्तर साहब एंड देन हमीद साहब, देन मदरसा इन कुजवा, जाफर भाई फॉर योर नॉलेज. ये सब चीज़ किया गया. फंड्स की कमी नहीं रही है उस इदारे में, उस एरिया में. वी डोंट वांट फंड्स. व्हाट वी आर लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट वी आर गोइंग टू इनपुट, ताकि आउटपुट बाहर आ सके. वो स्ट्रेंथ, वो डेडिकेशन, वो विलिंगनेस थोड़ा सा कम नजर आ रही है. जैसे अभी कारगिल से जनाब थे, इन द मॉर्निंग यू वर टेलिंग, आई हैव बीन सम इयर्स, आई वाज स्टेइंग इन कश्मीर, JK, आई वाज पोस्टेड देयर, आई हैव बीन टू दोज प्लेसेस. ये फंड मांग रहे हैं, इनके यहाँ लोग पढ़ने के लिए बेचैन हैं. आई हैव सीन दैट. JK जम्मू कश्मीर के अंदर में, लद्दाख के अंदर में, यंगस्टर्स, मौलाना यहाँ पे जामिया अहले बैत में, हैव सीन पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम करगिल एंड जस्ट स्टेइंग देयर. वहाँ जज्बा है लोगों के अंदर में. बिहार, यूपी, आई एम टॉकिंग अबाउट ईस्टर्न यूपी, यू विल हैव टू लार्जली अग्री, जज्बे की कमी है. इवन दो वी हैव फंड्स, वी हैव बिल्डिंग्स, वी हैव टीचिंग इंस्टीट्यूशंस, वी हैव विजन्स, बट उन विजन्स को लेके गार्जियंस को आगे बढ़ाना, मेरे लिए कहना भी शर्म, आई एम फीलिंग सॉरी टू से कि अब इंटरनेट आने का एक डिसएडवांटेज ये हुआ है इस कम्युनिटी में कि 365 दिन यहाँ मजलिसें और महफिलें होने लगी हैं. पहले क्या होता था कि मजलिस महफिल संडेज लिमिटेड होती थी, तो बाकी के 5-6 दिन लोग पढ़ाई लिखाई नौकरी करते थे. अब क्या हो गया है कि पीपल हु आर सिटिंग इन द कंफर्ट ऑफ देयर नेटिव प्लेसेस, जिनके कोई रिलेटिव सऊदी में है या कुछ हैं, वो 365 दिन मजलिस, मातम, शादियां, ब्याह कर रहे हैं.
and the prime youths and the time which they should be devoting into learning something, into growing out into a good community member is being missed out. So I'm just concluding my speech with this कि जो history थी मेरे trust की, मेरे school के as on date what we are doing and the future we are looking at. Currently the school is being run by the government aid. Government pays salary to the teachers, they pay even for the fees of the students. तो हमें फंड की कोई कमी नहीं है. हमारा अपना एक ट्रस्ट है जो हमारे अपने स्कूल के क्रिएटेड वेल्थ से चलता है, वेयर वी आर सपोर्टिंग मैरिजेस फॉर द गर्ल्स, वी आर एडिंग विडोज एंड वी आर इन्वेस्टिंग इनटू मेडिकल एड्स. एंड स्कूल में अगर डिजर्विंग बच्चे हैं तो उनको स्कॉलरशिप पे हम रखते हैं. But what we are looking in future, we are looking in future not only for MS High School or Trust for Husainganj but I'm looking for whole Bihar and Eastern UP where we feel that the commitment is lacking. The commitment is lacking. Why? Because जितनी चीजें मैंने गैदर करी हैं कि बच्चों का जितना कंट्रीब्यूशन है उससे ज्यादा गार्जियंस का कंट्रीब्यूशन है. That contribution is missing. The parents needs to be more accountable towards society. Then the children will become more accountable towards the parents. तो जो आई एम नॉट टेलिंग इट्स माई ये हमारी जिंदगी का मकसद है मजलिस मातम, हम बिल्कुल इससे एग्री करते हैं. बट मजलिस मातम का एक वक्त होना चाहिए. मंडे टिल संडे 24/7 अगर मजलिसें और महफिलें होती रहेंगी तो जाहिर सी बात है आप लोगों को रोक नहीं पाएंगे. बच्चे जाएंगे, लाउड स्पीकर्स पे ऐलानात हो रहे हैं, तबरुकात हो रहे हैं. अब तो ये भी हो गया है कि एक दिन में 3-3 शिफ्ट में मजलिसें हो रही हैं और तीनों शिफ्ट में खाने मिल रहे हैं. So what can be a better place to socialize other than this? So it becomes a family affair, and at the cost of this family affair we are missing out a very golden productive time जो हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं. So while I am privileged to stand in front of such a elite class and speak out because I was separated from the mainstream of the society, I was put in a boarding hostel and I was given education. क्या जो लोग घर पे अपने माँ बाप के पास बैठे हुए हैं उनकी सबकी बच्चों की जिम्मेदारियां उनके माँ बाप की तरफ, उनके माँ बाप की जिम्मेदारियां समाज की तरफ, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहे. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस ग्रुप इटसेल्फ टू कोलैबोरेट पोस्ट दिस मीटिंग. We all will be contributing in whatever ways it is possible, but I am sincerely requesting Najmi bhai, like you and people like you, Jafar bhai, you people from Bihar who can contribute, कि हम इस बिरादरी के, इस समाज में पनपते हुए इस बीमारी को, मैं इसलिए बीमारी बोल रहा हूँ, आई हैव सीन, एक मोबाइल है, हर कोई इन्फ्लुएंसर बन गया है, हर कोई यूट्यूबर बन गया है. वो कंस्ट्रक्टिव टाइम द एज ग्रुप विच नजमी साहब हैज गिवन इन द मॉर्निंग, वो कंस्ट्रक्टिव टाइम बच्चों का जो है, एंड होता क्या, आप एक पोस्ट डाल रहे हो एंड देन यू कीप ऑन चेकिंग हाउ मेनी लाइक्स यू आर गेटिंग, एंड व्हेन यू आर नॉट गेटिंग द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ लाइक्स यू फील डिजेक्टेड. आपका डिजेक्शन एग्जामिनेशन हॉल में होना चाहिए था, यूट्यूब और फेसबुक्स पे नहीं होना चाहिए. सो रिप्रेजेंटिंग अ फादर ऑफ 2 growing kids, the problem is everywhere. It's in our household, it's everywhere. As a school that represents a village, a community, a state, everywhere, and largely a part of the blessed Shia community, we need to think more on such meetings. I don't think every time it will be possible to have physical interactions. इसको हम virtually कैसे कल्मिनेट करें कि जहां कुछ लोग, शायद इतने बड़े लोग हम लोग ना बैठ पाएं. जैसे अभी आपसे जनाब ने कहा था कि he'll be creating a think tank type of thing, what things to be carried from this place and how to get it implemented. Such people are requested to join and guide the community forward. Otherwise हम रोना रोते रह जाएंगे कि रहमतें हैं तेरी अग़यार के काशानों पर, बर्फ गिरती है. शेरो शायरियाँ अपनी जगह, but we need to be realistic. We need to commit to the society and our kids needs to commit to the parents. तभी समाज चलेगा. Thank you, शुक्रिया. जनाब आगा मुजाहिद साहब, हैदराबाद. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास. तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के फ़ायदे के लिए लाई गई, तमाम लोगों के फ़ायदे के लिए लाई गई है. कुरान की आयत है. और ये खैर उम्मत, हम आपको यकीन है कि रसूल से जुड़ी हुई थी, आले रसूल से जुड़ी हुई थी, जिससे हम आप जुड़े हुए हैं. अब सवाल ये होता है, जब हम तारीख में जाते हैं, आइम्मा का दौर देखते हैं, तो उसे गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहा जाता है, खुसूसन 2nd-3rd सेंचुरी को, जबकि खुलकर काम करने का मौका मिला 5वें और 6ठे इमाम को. हदीस में मिलता है, इमाम फरमाते हैं कि मेरा शिया भूखा मर जाएगा लेकिन हाथ नहीं फैलाएगा. इससे पहले कि वो मर जाए कोई शिया उसका हाथ पकड़ लेगा, उसको आगे फैलाने की जरूरत नहीं होगी. ये कमिटमेंट सोसाइटी का था जो इजाद किया गया था.
कि कैसे कोई मेरा फॉलोअर होते हुए हाथ फैला दे। हमने हाथ फैलाना आसान बना दिया, मांग कर ले लेना और अलग अलग तरीकों से मांगना हमने सीख लिया। Instead of creating value, we wanted to take away from the value created by others. Beg, borrow or steal. So what kind of a community we have become? We might extol ourselves. Oh, we are the greatest. तुमसे जमाना, कुछ जमाना हमसे कायम नहीं. We have become a burden on mankind. Leave alone kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Because we took it totally in the opposite way. We tolerated anything in the name of religion without asking for a proof. ये अपने आप को तबाह करने के लिए, अपनी औलाद को तबाह करने के लिए काफी है। अगर कोई चीज आप बगैर दलील के कबूल कर रहे हैं तो आपकी औलाद भी कबूल करेगी और उसके बाद उसके पास कोई कसौटी बाकी नहीं रहेगी। क्यों? आज का दौर मादियत का दौर है, मादियत का दौर है। मादी साइंसेस की हम जब बात करते हैं, मटेरियल फिजिकल साइंसेस की, तो वहां पर हमको एक लेवल की दलील दिखती है। मैं केमिस्ट्री पढ़ाते हुए एक इक्वेशन लिखूं जो बैलेंस नहीं हो रहा हो, शिकायत जाएगी प्रिंसिपल के यहां कि साहब ये इक्वेशन तो लिख देते हैं, इनको ये तक नहीं मालूम कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बुलाएगा, पूछेगा, दूसरी तीसरी मर्तबा मैं ये गलती करता हूं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड टू द लास्ट लेवल, अदरवाइज एंड फेलियर इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ एक्सक्यूज। दिस इज व्हाट मटेरियल वर्ल्ड हैज बिकम। यू परफॉर्म और पेरिश। अब आइए दीन की बात। दीन होता है जो एक मेटाफिजिकल रियलिटी होती है, एक मेटाफिजिकल रियलिटी, तवज्जो कम होता है, जो मेटाफिजिकल रियलिटी होती है। मेटाफिजिकल रियलिटी फिजिकल रियलिटी को इंपैक्ट करती है अंडरस्टैंड करने में। आयतुल कुर्सी ले लीजिए, ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। कोई उसके इल्म से किसी चीज पर अहाता नहीं करता मगर के जो वो चाहे। यह बुनियाद बनती है कि हर इल्म अल्लाह से आता है और मेटाफिजिकल रियलिटी रखता है, मावराए मादी हकीकत रखता है। तमाम उलूम अल्लाह ही से आते हैं, अल्लाह की इज़्न के बगैर नहीं आते। तो ये हो गई मेटाफिजिकल। गहराई से जाएं, बच्चों को सिखाएं कि बेटा झूठ को एक्सेप्ट जिस दिन करेगा उस दिन तो अल्लाह को छोड़ देगा, रसूल को छोड़ देगा, कुरान को क्योंकि ला रहे भाई छोड़ देगा, आइम्मा को छोड़ देगा। जब सब चीज को छोड़ देगा तो तेरे पास बचेगा कुछ नहीं, कुछ तो रख ले। और रखना है तो इसमें आप तय नहीं करेंगे, इट इज ईदर कंप्लीट और नथिंग। या आप 100% को टारगेट करेंगे, आप 99 पे जाएंगे, अल्लाह कबूल नहीं करता। ये लोग तो सिवाय जन के किसी को मानते ही नहीं है। प्रिपॉन्डरेंस अल्लाह को कबूल नहीं है, यकीन होना चाहिए। इसलिए कुरान शुरू करता है पहला बड़ा सूरा ला रैबा फी से, और आगे जाकर दूसरी सतर में आता है मुत्तकीन की सिफत, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। गैब पर ईमान लाना। गैब पर क्यों ईमान लाना? एक सेकंड में बोल रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। जब रैब नहीं है किताब में तो फिर ये गैब पर ईमान क्यों है? आंखों से, कानों से, हाथों से हम अपनी फिजिकल जो फैकल्टीज हैं दर्क करने की, हम उससे दुनिया को देखते हैं और दुनिया को फिजिकली समझते हैं, दर्क करते हैं। जब ये दुनिया को हम दर्क करते हैं तो हम देखते हैं कि इट डजंट कंप्लीटली आंसर्स इट्स क्रिएशन। सेंस समझ में नहीं आता, दुनिया अपना पूरा मफहूम और माना नहीं समझा पाती, नहीं समझा पाती। इसमें मौत है, इसमें भूख है, इसमें बीमारी है, इसमें फक्र फाका है। ये सब चीजें जो एथियस्ट यूज करते हैं अल्लाह के नहीं होने पर दलील। ये मुत्तकी ऐसा है कि वो कह रहा है कि हां ये दुनिया सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, खुद को नहीं समझा सकती। अल्लाह तो है और अपने तकवे के जरिए से समझ गया कि अगर जाहिर अगर नहीं दिखा सकता तो इसके अलावा कोई गैब है जिसकी बेसिस के ऊपर ये दुनिया बनी है, और गैब पर ईमान लाता है और फिर नमाज की तरफ जाता है जैसे आयत आगे बढ़ती जाती है। तो गैब पर ईमान लाना फिजिकल वर्ल्ड की महदूदियत को देख कर लाना है। जिस तरीके से फिजिकल इंटरप्रिटेशन जब हम करते हैं तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को ले आते हैं ताकि यह समझ सकें कि यह 5% फिजिकल रियलिटी अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसके पीछे छुपी तो फिजिकल वर्ल्ड में भी कुछ छिपी हुई चीजें होती हैं जो एक्सप्लेनेशन के लिए जरूरी होती हैं, मेटाफिजिकल में और ज्यादा जरूरी होती है। इसमें कुछ शक हो सकता है कि क्या है क्या नहीं है, मेटाफिजिकल में शक नहीं होता क्योंकि इसमें रैब नहीं होता। तो यू आर ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ परफेक्शन, यू हैव टू रिटेन दैट परफेक्शन थ्रू योर एफर्ट एंड थ्रू योर तकवा एंड थ्रू यू रिड्यूसिंग शैतान टू अ रिडंडेंट एंटिटी। हो सकता है कर लें तो हमारा कल दूसरा होगा, वगरना हमारा कल बयान के काबिल भी ना होगा, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई, और बड़ी सबक आमूज़ आपकी बातें। आज के हालात में मौजूदा दौर में आपने देखा होगा कि जो ह्यूमन राइट के वायलेशंस होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए एज ए इंडियन सिटीज़न क्या क्या राइट्स प्रोवाइड करता है ये भी जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि जस्टिस शबील हसन साहब मौजूद हैं यहाँ पे, आप आएँ और इस पर रोशनी डालें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मैं एक्सीडेंटल स्पीकर हूं। मैं इत्तेफाक की बात है कि मैं कल यहीं पे एक प्रोग्राम था और जिसका जिक्र भी करना मैं ज़रूरी समझता हूं, वो माइनॉरिटीज़ के जितने स्टूडेंट्स हैं जिनको कैच देम अर्ली का एक नारा दिया गया, जो बात यहाँ भी हुई थी और ये नजमी भाई भी कह रहे थे कि बहुत यंग एज में उनको बताया जाए कि क्या क्या तुम कर सकते हो, ताकि वो वक्त ना लगाएं, बहुत देर ना कर दें किसी नतीजे पे पहुंचने के। तो उसका एक सेमिनार था, मैं उसमें आया हुआ, तकरीब 400 बच्चे थे यहाँ पर। और उन लोगों से भी आप रब्त रखिएगा, क्योंकि हमारी आने वाली जो नस्लें, इसके बाद की जो एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन की बात है, उसमें अगर कनेक्शन होगा तो बहुत फ़ायदे की चीज़ होगी। मैं स्ट्रेट अवे एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ सब लोगों से, और ये कोई टेस्ट नहीं है और ना कोई आपका इम्तिहान है, लेकिन यूं ही एक बात को प्रूव करने के लिए मैं पूछना चाहता हूँ सबसे कि हम सब लोग यहाँ जो बैठे हैं, ज़्यादातर मेरे ख्याल से 90% सब हिंदुस्तान से ही हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्चुअली बुक फॉर्म में कभी देखा है? आप तो खैर हैं, ठीक ही है, 3-4 हाथ हैं जी। कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि आइन की कॉपी उर्दू में भी है? वही सेम लोग हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि चाहे कुरान के हिसाब से, और चाहे अल्लाह के हिसाब से, और चाहे अपनी अक्ल के हिसाब से, दानिश्वरी के हिसाब से, आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस मुल्क में आप रहते हैं, अगर आपको वहाँ के कवानीन ही नहीं मालूम तो आप कर क्या रहे हैं? आपको यही नहीं मालूम कि आपकी एग्जिस्टेंस यहाँ पर, आप किसी मकान में रह रहे हैं, तो या तो आप किराएदार होंगे या आप लैंडलॉर्ड होंगे। कोई तो हैसियत आपको मालूम होगी अपनी, लेकिन वो मालूम तभी होगी ना जब आपने कोई एग्रीमेंट किया होगा, आपने रजिस्ट्री की होगी तो आप लैंडलॉर्ड होंगे, टेनेंट एग्रीमेंट होगा तो आप टेनेंट होंगे। आपने कॉन्स्टिट्यूशन देखा ही नहीं है, तो आप यहाँ पे टेनेंट हैं, लैंडलॉर्ड हैं, कि आपके क्या राइट्स हैं, क्या हो सकता है। वो अलग बात है कि मजमे में बैठ के अभी तो अंगड़ाई है और आगे और लड़ाई है और हम अपना हक लेके रहेंगे और हमको कैसे नहीं मिलेगा। अरे क्या मिलेगा, क्या मांग रहे हैं आप, ये मालूम है? जब आपको यही नहीं मालूम कि आपका हक है क्या, तो आप किस बात की लड़ाई लड़ते हैं? तो मेरी एक बहुत गुजारिश होती है, ये बहुत अदब से गुजारिश है, इसमें कोई आप मेरा ये ना समझिएगा कि मैं जज साहब हूँ, था वैसे भी, वो भी अब बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप जिस भी मुल्क में रहते हैं, जो जहाँ भी रहता है, उसको इस बात का ज़रूर अंदाज़ा होना चाहिए कि वहाँ के उसूल क्या हैं। हुकूक की ही बात नहीं है, जनरली आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए। और हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उनको ये बात ज़रूर मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के बारे में सुनना एक बात है, जानना दूसरी बात है, और जब इन दोनों को मिला लेते हैं तब आप महसूस करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। और जब तक आप डेमोक्रेसी महसूस नहीं करेंगे, you will not belong to any institution, any land, any society। शिद्दत से आपका मुतवज्जह करना चाहता हूँ आपको कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ हुकूक ही नहीं है, फ़राइज़ भी हैं। आर्टिकल 51 है जिसमें तमाम तरह के फ़राइज़ हैं, लेकिन मैं 2 का जिक्र करना चाहता हूँ। अभी जो आपने कहा था और कई लोग कह चुके हैं, उसमें से 2 का जिक्र मैं करना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री शैल स्ट्राइव टू हैव साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। जिस दलील की बात आप कर रहे थे अभी, वो आपका रिलीजियस फरीजा तो है ही, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फरीजा भी है, और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फरीजा आपके दीन से अलग नहीं है। वहमो गुमान से बाहर निकलने की बात इस्लाम में ही नहीं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जा रहा है कि साहब वो फला जगह पे ये हो गया कि आज मैं लखनऊ में था, वाइल आई वाज सिटिंग जज, पता चला कि हमारे जो स्टाफ वाले थे सुबह आए नहीं, तो मैंने पूछा कि भाई क्या हो गया। पता चला सारी रात ये लोग पेड़ के नीचे खड़े थे, क्योंकि वो एक बता दिया गया था कि जो लोग अपने घर में रहेंगे वो बुत बन जाएंगे सुबह। शायद आपको याद होगा, ये हुआ था लखनऊ में। और सारे जो हमारे चपरासी थे वो रात भर साले जाग रहे थे, सॉरी
सुबह सुबह चलिए कोई बात नहीं आपने वजाहत करके वो जो मुझे फंसा दिया तो खैर वो जो हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपके स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी में ज़रूरी हैं और आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन जानना बेइंतहा ज़रूरी है। हमारी जो वालिदैन की कम्युनिटी है उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हैं। जो वो खुद नहीं कर पाए वो बच्चों से करवाना चाहते हैं। और उसका एक छोटा सा जोक भी है, मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर दूं कि एक वालिद साहब जो हैं अपने बच्चे को मार रहे थे और कहा तुम्हें पता है वो जब नेहरू जी जो हैं वो क्लास 8th में थे तो उन्होंने टॉप किया था जो वो 12 साल के थे। तो उसने कहा जब वो 64 साल के थे तो प्राइम मिनिस्टर हो गए थे, आप क्या कर रहे हैं? तो सवाल ये है कि ये नजमी साहब ने इसको बात को कहा, तो पहले मैं भी बताना चाहता हूं कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो डॉक्टरी और इंजीनियरिंग ही नहीं बची हैं, बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज़ हो गई हैं। और बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज़ में एक अपॉर्चुनिटी का मैं जिक्र भी करना चाहता हूं कि जहन में रहे, लॉ का प्रोफेशन एक बहुत इमेंस पॉसिबिलिटीज़ का आजकल का एक दौर आ गया है इसका। पहले लॉ का मतलब सिर्फ एक पहलते टहलते हुए जाना और वहाँ पर एक छप्पर के नीचे अपना एक तख्त बिछा लेना और वकालत करना, ये एक ऑप्शन था। आज का दौर जो है वो लीगल प्रोफेशन के लिए बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। तो जिन लोगों को ये गुमान है या इस तरह का शौक़ है कि साहब मेरा बेटा या तो इंजीनियर बने और या डॉक्टर बने, और डॉक्टर के बारे में भी ये एक बात कभी वजाहत के साथ नहीं हुई होगी लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत ही डेंजरस अपॉर्चुनिटी है ये डॉक्टर वाली। वो वजह उसकी बता रहा हूँ। 5 साल आपको चाहिए MBBS करने के लिए, और MBBS के बाद आपसे कोई इंजेक्शन भी नहीं लगवाना चाहता। MBBS का कोई बोर्ड आपको नहीं मिलता। आप देखेंगे MD से कम वाला तो बोर्ड लगाता ही नहीं है। फिर उसके बाद आपको MD करने के लिए फिर आपको 3 साल चाहिए, उसके लिए करना है नीट करना है, आपको नीट करने के लिए फिर कोचिंग चाहिए, और फिर उसके बाद नीट के बाद भी आप PG करिए, और PG करने के बाद भी आप कहीं नहीं हैं। फिर उसके बाद रेजिडेंटशिप करनी पड़ती है, और एक और चीज़ है वो जो 2-3 साल चलती है, तब आप कहीं पहुंचते हैं। तो 14 साल की ये जो वक्फा है ये आपको और आपके बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है कि पता नहीं 14 साल के बाद डॉक्टर्स की सूरत क्या होगी, जो जिस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह चल रहा है। तो ये जो ट्रेडिशनल प्रोफेशंस थे, इससे ज़रा सा जहन को बाहर निकालने की ज़रूरत है। ये चीज़ें जो करिकुलम होता है उसमें भी बताने की ज़रूरत है। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मेरा बहुत हकीर सा ये सजेशन है कि स्कूल्स में बच्चों की काउंसलिंग के बजाय पेरेंट्स की काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो मैं छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि उनकी भी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, और लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं, कितने तरीक़ों से हो सकती हैं, उनको भी बताया जाए। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत सजेशन होगा। और वक्त कम है, मैं एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा था, और दूसरी ये कि ये जो वालिदैन हैं उनको एजुकेट करिए, उनको बताइए कि मेडिकल का अरमान पूरा करने के लिए आपका घर पहले बिकेगा। हाँ, पहली बात तो होगा तो बिकेगा, लेकिन अगर होगा तो बिक ज़रूर जाएगा। इतनी हाई फीस है मेडिकल कॉलेजेस की कि पूरा करते करते 14-15 साल में बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है, और उसके बाद भी आपको कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, और वहाँ पर आप बिल्कुल ही गैर शरई और गैर इंसानी काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स हैव बिकम ड्रेडफुल प्लेसेस। इससे बहुत अच्छा है कि आप कुछ आप ऐसी ले लें, पेंटिंग सीख लें, आप डेकोरेशन का काम सीख लें, आप हैंडीक्राफ्ट सीख लें, आप कुछ भी सीख लें। हुनर आपके हाथ में होगा तो आपके लिए डिग्री इमटेरियल हो जाएगी। हमारा जो फोर्स होना चाहिए या फोकस होना चाहिए वो सिर्फ डिग्री हासिल करने पर न रहे। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि डिग्रियां कम हैं, और डिग्री के बाद आपकी मुसीबत ये हो जाती है कि डिग्री रखने के बाद आप कोई हुनर वाला काम कर नहीं पाते हैं। जिसके पास डिग्री नहीं है वो तो
शायद इंजेक्शन भी लगा ले, पट्टी भी बांध ले, लेकिन जो एमडी हो गया है उसको अगर नौकरी नहीं मिली तो वो ना पट्टी बांध सकता है और न इंजेक्शन लगा सकता है। जैसे जज साहब के बाद रिटायर होने के बाद मैं कपड़े की दुकान नहीं खोल सकता, तो मैं ऐसे ही आपको लाइटर साइड में बता रहा हूँ। लेकिन कभी कभी ये डिग्रीज जो हैं वो बहुत बाउंड कर देती हैं, और हुनर जो है आपके पास जिससे आपकी रोजी रोटी चल सकती है। देखिए एक बात बहुत हकीकत की है कि अगर आपके पास पेट में अगर भूख बची हुई है तो आप यकीन मानिए कि सारी इल्म की बातें एक तरफ हैं, ईमान नहीं बचेगा। तो इसलिए इस बात को ज़रूर आप ख्याल रखें, क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ब्रेड एंड बटर सप्लाई कर सकती है। फर्स्ट थिंग, अगर वो एजुकेशन से मिलती है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो आपके हाथ में हुनर दे दे, उस तरफ करने आप, तो वो बहुत ही बेहतर बात होगी। मजाज की 4 लाइनें मुझे याद आ रही थी, मैंने अभी लिखा, ज़हन इंसानी ने अब औहाम के जुल्मात में, जिंदगी की सख्त तूफानी अंधेरी रात में, कुछ नहीं तो कम से कम ख्वाब सहर देखा तो है, जिस तरफ देखा ना था अब तक उधर देखा तो है। तो आप जो कोशिश कर रहे हैं वो बेइंतहा बहुत अच्छी है, लेकिन इस कोशिश को थोड़ा सा और डायरेक्शन की ज़रूरत है। नसीम भाई वगैरह रहेंगे, मेरी कोई ज़रूरत होगी कभी तो मैं हाजिर हो जाऊंगा, आप जब हुक्म करेंगे। और आपके पास एक बहुत अच्छा सा रास्ता है कि आप उनको मेरे पीछे लगा दिए, वो ले आएंगे मुझे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब। एक यंग एंटरप्रेन्योर रज़ा जीवानी साहब, आप भावनगर से आए और तकरीबन एग्रो प्रोडक्ट्स में 4 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका वर्ल्ड वाइड पेटेंट है इनके पास, और बड़े उभरते हुए एंटरप्रेन्योर हैं माशाल्लाह, और अभी माइक्रो फाइनेंसिंग पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनके तासुरात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। थैंक यू ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। मेरे जो मेंटर है हमेशा एज ए यूथ, अभी जस्ट मैं यूथ में से शायद ये मिडिल एज में आए हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो जैसे सभी लोग बात कर रहे एजुकेशन की, एकेडमिक्स की, उसके साथ मेंटरिंग भी इतना ही ज़रूरी है कि आपको मेंटर कौन कर रहा है। तो मुझे मेरे लाइफ में 2 मेंटर, 3 मेंटर बहुत अच्छे मिले। एक खुद मेरे ग्रैंडफादर थे है कि जिन्होंने मुझे लाइफ का और बिज़नेस के कुछ बेसिक्स सिखाए। दूसरे मुझे मेंटर मिले मोहसिन धर्मसी के, जो वर्ल्ड फेडरेशन के वन ऑफ द मुल्ला असगर साहब के साथ फाउंडिंग मेंबर है, और उन्होंने वहाँ से यूके से आज से तकरीबन 20 साल पहले, 18 साल पहले इंडिया को अडॉप्ट किया, इंडिया अख्तियार किया। और आज जो मेहदी स्कूल आप एकेडमिक्स में जो एक्सेल देख रहे हैं, दूसरी स्कूल्स का अपलिफ्टमेंट देख रहे हैं, उसके अंदर उनका काफ़ी हाथ और गाइडेंस रहा है। इन्होंने जब मुझे 2007-8 में जब मेरी मेंटरिंग शुरू की तो उन्होंने मुझे 2 टारगेट्स दिए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद, कि दुनिया भर ने एकेडमिक्स पे बहुत काम किया, ज़ैनबिया चाइल्ड स्पॉन्सरशिप स्कीम, ये सारी हाउसिंग पे काफ़ी सालों से काम हो रहा है, हेल्थ केयर पे काफ़ी सालों से काम हो रहा है और होता जा रहा है। अभी जो 2 ज़रूरत है वो है यूथ एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। यूथ एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में हमने जो है वो 2007-2008 इसी मेहदी स्कूल के कैंपस के अंदर उनके ही घर में हमने जो है सहरी पार्टीज शुरू की। अभी जो कॉन्सेप्ट बोला जा रहा था कि रात को 2 बजे तक कबाब की दुकान खुली रहती है, माह रमज़ान के अंदर सैटरडे रात को एक जवान आदमी क्या करेगा, वो सहरी तक जगने वाला है, उसका टाइम बेस्ट यूटिलाइज कैसे हो सकता है। तो रात को 12 बजे से लेके सुबह को 4 बजे तक हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जो माह रमज़ान के 4 सैटरडे होते हैं, एवरी सैटरडे नाइट को होना है। उसके अंदर 40 to 50 यूथ्स जमा होते हैं। उसके लिए उसका आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए, आइदर यू शुड बी अ ग्रेजुएट और अ यंग प्रोफेशनल, तो ही आप उसके अंदर एंटर हो सकते हैं। आप 50 लोग एक साथ बैठे हैं, वो एक रात को आपने अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड किया हुआ है। आपने शुरुआत किया इस्लाम से, आपको इस्लामिक गाइडेंस मिला आधे घंटे का, आपने फिर बिजनेस डेवलपमेंट पे लेके गए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे लेके गए, बेटर मेडिकल, बेटर हेल्थ केयर, बेटर प्रिजर्विंग योर सेल्फ, गोइंग फर्दर उस पर लेके गए। उसके अंदर स्पोर्ट्स का एक सेक्शन रखा, फुटबॉल रखा, आपने क्रिकेट रखा, रात को 2 बजे 2:30 बजे, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका सहरी भी हो रहा है, ब्रेक भी हो रहा है, और ये सभी के साथ साथ ये 1 वे सेशंस नहीं है, ये डायलॉग है। अभी एक वो कभी कम्युनिटी ने वो
वो मौका ही नहीं दिया था, वो प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया था कि वो 20, 22, 25 साल के, 28, 30 साल के लोग एक दूसरे के साथ अपनी आइडियाज़ पे बात करें। यहाँ पे पूरी रात वो अपने अपने आइडियाज़ खुल के बात करते एक दूसरे के साथ, और उसको सामने से रिवर्स क्वेश्चन आते हैं, रिवर्स उसको सामने से पूछा जाता है और उसका हैंड होल्डिंग होता है। आज इसका अगर आप नतीजा देखेंगे तो आज जो आदमी जो एकदम गरीब तबके से था उसको ये हैंड होल्डिंग मिला कि उसको डॉक्टर बनना था, डॉक्टर का गाइडेंस तो मिला, लेकिन वो जब 12th स्टैंडर्ड में था तो वो 12th स्टैंडर्ड में किसी डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ा और ऑपरेशन थिएटर में अपने साथ खड़ा रखा देखने के लिए कि देख ऑपरेशन कैसे होता है। आज उसने खुद की अपनी 2 दिन पहले पूरी हॉस्पिटल का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया उसने। एक आदमी जो एक छोटा सा 15,000 रुपए की नौकरी कर रहा था, क्लरिकल जॉब कर रहा था, और उससे आगे बढ़ने के लिए उसने सोचा कि मैं थोड़े ट्यूशन क्लासेस कराऊं। आज वो जो है वो गुजरात की 2nd नंबर की बाईजूस के जैसी एडटेक कंपनी का मालिक है और चला रहा है, कि जिसके अंदर हजारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ऐसे सिर्फ ये नहीं है, अभी इसमें से अलग अलग स्ट्रीम्स निकलते गए। जो माइक्रो फाइनेंस का स्ट्रीम की आपने बात करी, माइक्रो फाइनेंस जो ये हो गया यूथ डेवलपमेंट। अभी इसके अंदर और क्या क्या काम किया है जो खास जो भी हमारी स्कूल्स है उसमें से आगे करने की ज़रूरत है। बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेड एग्जीबिशंस होते हैं पूरे इंडिया में, जैसे सर ने करियर काउंसलिंग किया। उसके आगे वो जो लाइन में जाना चाहता है, जो प्रोफेशन में जाना चाहता है, उसको ना सिर्फ वहाँ पे इंडिया के अंदर ग्लोबल लेवल पे उसको लेके जाके वो ट्रेड का एक्सपोजर दो, वो प्रोफेशनल्स के साथ उसका एक्सपोजर दो। तो इस तरीके से यूथ डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी सारा काम हो सकता है। सेकेंड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ने जो काम किया उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही थी। जब बच्चा होता है उसको एंटरप्रेन्योरशिप की पता नहीं होता कि क्या क्या मुझे मुश्किलें आगे आने वाली है। उसको जो है वहाँ से एक ऐसा उससे 10 साल आगे बढ़ा हुआ आदमी कनेक्ट कर दिया, जिसने खुद ने थोड़ा फंडिंग भी डाला, उसका पार्टनर भी बन गया और एक लॉन्ग टाइम उसको गाइडेंस भी मिल गया। तो एक सेकेंड लाइफ पूरी आगे बढ़ गई। कितने सारे ऐसे स्टार्टअप्स खड़े हुए, कितने सारे आज सक्सेसफुल बिजनेसेस है, कितने सारे ऐसे आइडियाज है कि जिसको आज इन्वेस्टर्स मिल गए। माइक्रो फाइनेंस के अंदर 2-3 ऐसे एग्जांपल्स जो मैं बता रहा हूं, अगर केस टू केस स्टडी किया गया, एक भावनगर के अंदर एक दर्जी था छोटा सा, जो एकदम लो लेवल के एरिया में, स्लम जैसे एरिया में ऑपरेट कर रहा था, एकदम लोएस्ट इनकम थी उसकी। आज उसके पास एक आइडिया था, उसके पास जुनून था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। जब उसको सुना गया, एक पैनल बनाई गई जिसके अंदर एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर को रखा गया कि अगर बैंक को इसको लोन देनी हो तो आप क्या क्या एनालिसिस करेंगे। तो उसने पूरा एनालिसिस किया, देखा कि नहीं इसमें दम है, ये बिजनेस आगे कर सकता है, बढ़ा सकता है। आज के दिन में उसको एक बहुत छोटी सी अमाउंट से उसको सपोर्ट करके और फिर टाइमली सपोर्ट और टाइमली हैंड होल्डिंग करके आज उसकी खुद की एक गारमेंट की ब्रांड है। एक छोटा सा वेजिटेबल वेंडर, वो छोटे से वेजिटेबल वेंडर को थोड़ा पैसा देके, उसको थोड़ा सपोर्ट करके आज वो सिटी का सबसे बड़ा बनाना कोल्ड स्टोरेज वो बंदा हैंडल कर रहा है। ये सब हमारी कम्युनिटीज में से, ये सब ऐसे थे कि जो अपनी रात को क्या खाएंगे या किसी ट्रस्ट पे या किसी उस पर डिपेंडेंट थे। आज उसमें से वो ये लेवल पे कि वो दूसरे को मदद कर रहे हैं और कितने लोग उनके नीचे एम्प्लॉय हो रहे हैं। सो 2 मोटिव्स, एक है यूथ एम्पावरमेंट, एक है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इस पे भावनगर के अंदर यही सब बुजुर्ग, सज्जाद भाई बैठे, परवेज सर है, मेहदी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हुए वर्ल्ड फेडरेशन में से कुछ अच्छे जो गेस्ट आते थे उनकी मदद लेते हुए हमने बहुत सारा काम किया हुआ है। अगर आपको एक कश्मीर की बात हो रही थी, कश्मीर में हमारा जो बिजनेस है वो एग्री इनपुट का बिजनेस है। लास्ट 53 ईयर्स से हमारे फैमिली जो है, सो करंटली वी आर इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप फॉर बायोस्टिमुलेंट सेक्टर, दैट इज वन ऑफ द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। सर को मैंने बताया और भी कंट्रीज में है। आप देखिए कश्मीर के अंदर हम जब रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमारे पास BSc तो कोई आता ही नहीं है, MSc, PhD और अनएम्प्लॉयड। वो MSc भी है, PhD भी है और उसके बाद भी अनएम्प्लॉयड है। आज ऐसे और कश्मीर का आप इंग्लिश देखो, कितना फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। क्या वो दुनिया की वर्ल्ड कम्युनिटीज को बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सर्विस नहीं दे सकते? हमारा एक
जब कोलैबोरेट करने की बात है तो हम लोग देख रहे हैं कश्मीर के अंदर श्रीनगर में एक ऐसा बीपीओ डेवलप किया जाए, एक ऐसा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग डेवलप किया जाए, ना सिर्फ कॉल सेंटर लेकिन अच्छे अच्छे साइंटिफिक जॉब्स आउटसोर्स करके कश्मीर पूरी दुनिया को सर्व कर सकता है बेस्ड ऑन देयर डिग्री, देयर नॉलेज एंड देयर लिंगुअल स्किल्स. सो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. आई एम स्टिल लर्निंग फ्रॉम मेनी ऑफ यू एंड आई एम हियर टू कोलैबोरेट. जहाँ पे जो जरूरत पड़े एज एन इंडिविजुअल, we are ready to stand with you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much. Now, Dr. Nizar Mirali from UK. Assalamu alaikum. On this heavy afternoon after biryani, it's time to sleep. You should have given us half an hour siesta time as well, and you would have been much more fresher. And for us to carry on until 6 o'clock is going to be a task, isn't it? I thought normally most of these conferences I attend, you have tea break at about 4 as well. Just a hint. Okay, so come from a different context. I learned so much today. Wonderful work that's being done. Let me share with you with some of the work we are doing in the Western world. Some of you may be very well acquainted with United Kingdom and London. You might have visited there, you might have studied there, you might have your children visiting there. Let me just tell you some of the work that we are doing there. So, I'm a Khoja Shia Ithnashri from Kenya, Mombasa, born there, parents born there, grandfather born there. About 55 years ago, we moved to United Kingdom where I studied medicine. And at that time, this is before the Islamic Revolution of Iran time, we met friends from the Shia world. It's the first time I met a Pakistani Shia, first time I met an Indian Shia, Lebanese Shia, Iranian, Iraqi. It was wonderful, enriched environment, and we grew up together as friends. And we have since been together as a community of Shia Ithnashris and formed a community in Middlesex, which is about 20 minutes away from Heathrow Airport, called the Shia Ithnashri Community of Middlesex. And we have continued gathering there regularly with having regular functions, etc. And if you look at the next slide, so this is one of the scenes from the Ramadan function that we established many years ago. This is our weekly schedule that we have all the functions on different days of the week. And if you look at the next slide, the highlight of our event is a Friday evening salam talk that we call it. We invite anybody, man or woman, Muslim or non-Muslim, hijabi or non-hijabi, anyone who can talk about any subject that is of interest and that is of benefit, we invite them and they talk to us. I think we heard, I think Sheikh Sayyid Abid, you mentioned Subhani, Ayatollah Subhani, I think that's his son. That's his son, yeah. So he has been to talk to us as well. If you look at the next slide. Next slide. So about 20, 30 years ago, we started talking to the wider community, and this is something I heard today from Brother Aziz Haider, all the hard interfaith work that he's doing, particularly from the Hindu community, and it was very interesting. I met him on breakfast, and inshallah I'll keep in touch with him. So we have started communicating with a wider community where we live there as well. Just to give you the demographics of Harrow, Harrow has got about 250,000 population. This is one ward in London where I practice. There are less than 50% Christians. There's 60,000 Hindus, 45,000 Muslims, 15,000 Jews, etc. So among the Muslims, about 35,000 are Ahl Sunnah, about 5,000 are Shia within this community. And we have just one slide before. We have been working with our Shia, our Sunni brothers, the slide before, our Sunni brothers for the last 20-25 years. They built the one before, they built a mosque. And whilst they were building their mosque there, which is the largest mosque in Harrow, where 2,500 people go for Jummah prayers, whilst they were building their mosque, they said, can we use your center? Our center was 2 large halls. We have never had Jummah prayers there before. At Hujjat Stanmore, which is the Khoja Center, that's where we have our Jummah prayers. So we said, gladly, come and use our center. So for 14 years, whilst this mosque was being built, 800 Ahl Sunnah brothers came to pray Jummah prayers behind a Sunni Imam in a Shia center, and some of us joined him for 14 years every Friday.
And the impact of that was that they came and looked at the Ziyarat-e-Waritha on the wall, they started asking questions. They looked at Turba and they started asking questions. The president of that community opened Mafatul Jinan and said, MashaAllah, you got some lovely dua. I never knew that the Shias had this dua. They opened the Quran and they said it's the same Quran. We thought that the Shia Quran was different. So it has brought us, our community, so close together that for the last 5-6 years, we have had regular functions. We have had Muharram Majlis where we invite Sunni scholar to come and give us a talk as well. And for the last 5 years, this masjid now commemorates Ashura program in their masjid. Let's move on to the next. This is the local Christian community with which we have been collaborating, and we go for our midnight mass, their Christmas prayers. We've been going there every 2 months. We go either to the church or they come to us, and we talked about various discussions. We've been on picnics together. We've been on a trip to Jerusalem together as well. Next slide. Amongst our group of people, we have some very prominent people that some of you might know. Mukhtar Karim, who is, leads the Lady Fatima Trust, with Sayyid Jafar also representing, I don't know whether they're still here, in India. And then if you look at the next slide, you might have heard of Miqdad Asaria. Every item of Islamophobia article appearing in the British press that is wrong, he will challenge them. He will challenge them until he makes sure that they actually respond with a correction and print it again. So he monitors all the media. If you look at the next slide, this is Iqbal Asaria, one of our trustees as well, who got a CBE from the Queen many years ago. And if you look at the next slide, that's Ahmad Versi, who was a pharmacist by profession, but now is a journalist. And he sits there in the parliament every Monday to try and get a message about Islam across to the MPs. Next slide. Just as a sideline, Frida, my wife, and myself have established a school as our charity activity in India, in a village called Kirwa Jalalpur, and we would love to meet as many of you as you can this afternoon, inshallah, before we go back to Kirwa tonight to learn as far as the school is concerned. Let's go next slide. So, next slide again. So about 20 years ago, we asked ourselves, what can we do here in United Kingdom, in Harrow, to impact the wider community? This community has looked after us. We have been nurtured here. We have to pay back. Secondly, what can we do to counteract Islamophobia that is persistent? Every time 9/11 occurs, every time 7/7 occurs, we are all lumped together. Whereas our madhab, as interpreted by Ahlul Bayt alayhi salam, is so rich that we have failed, I think, to actually communicate with the wider community as far as its values are concerned. So we decided that we want to put a state-of-the-art center without a minara, without a dome. We want to make sure that it is attractive enough to everybody walking on the street to come to our center, to invite non-Muslims to our center. It is designed by a South African architect who was a student of Zaha Hadid, the famous Iraqi architect. And the facilities we have decided to put in this center are shown. It goes to basement -2, basement -1, ground floor, first floor, and second floor. We want to create facilities such that if I were to invite my non-Muslim doctor for a talk on diabetes in the lecture theatre, he comes and looks at the facilities and he feels like coming back himself uninvited with his family for a game of badminton or for a meal in the restaurant or whatever. I honestly feel that the best way that you can show what our values are is by interacting with them, playing with them, eating with them. Let them come to our center. Let's have a dialogue. At the age of 18 in 1970, when I went to United Kingdom, I was too timid. I was not confident to talk about Islam. There were 300,000 Muslims then in the whole of United Kingdom. Today there are 4 million Muslims in the United Kingdom. And our youth of 25 to 35 age group, believe me, are robust enough to be able to have a dialogue. What they singularly lack is space. And this is to try and create space for them so that they can bring their friends there. A university student can bring his university mate, a businessman can bring his business colleagues to the center. Next slide. So you'll agree that it's a beautiful building. Allah
the word Allah itself denotes beauty. It is going to be an eco-conscious building. It's going to be an inclusive building. It's going to be a functional building. And most importantly, it's going to be financially self-sustaining building as well. If not 100%, at least 80% of the running cost, the annual running cost of this building will be covered by the income generation. So this is what the prayer hall would look like. The architect took our the architect took our history. Where have you guys originated from? So we said we come from Iraq, Iran, Pakistan, India, Gujarat, East Africa, and then we came here. So from each one of these locations, he is trying to incorporate the design within the fabric of this building. So the ceiling of this prayer hall is from Isfahan design. And the next slide, the ceiling of this youth center is Mughal India design. And if we carry on, the ceiling of this sports hall is Masai Tanzania design. And the ceiling and the wall of this lecture theater is William Morris, famous British designer. So where have we reached? Carry on, next slide. So later Ayatul Sayyid Fadl Milani did the groundbreaking ceremony back in 2014. It has been a long struggle, brothers and sisters. Don't underestimate the time and the effort it has taken. It took us 6 years to get planning permission. Okay, 6 solid years to get planning permission. Without the support of the wider Muslim holding placard, that evening I remember when the planning was going to be refused, when we had about 600, 800 people, youth and old, black and white, Afghani, Somali, Iranian, Pakistani, Indian, everybody holding placards. When the chairman came to me at 6 o'clock and said, I'm going to defer the decision tonight, see me tomorrow morning at 9 o'clock in my office. 12 months later, we got the planning permission. We built the basement, 2 floors of basement from 2014 to 2017. We built the superstructure. This is the building as it looks like now. It's an aerial view. We have built the superstructure as well. And now we are ready to, inshallah, this is the building as it looks like. And now we are ready to try and fit out the interiors. As I said, it's basement, -1 and -2 as well, and then the superstructure as well. And the next slide. This is what the lecture theatre looks like. So one particular family from New York has actually sponsored this room. Next slide. This is what the sports hall. There's a proper sports hall, 5-a-side football, 4 badminton court, double height volleyball, basketball, netball. Carry on. Next slide. This is what the prayer hall is like. The ceiling, there are 14 skylights. Next slide. You can count 14 skylights. Next slide. This is what the first floor Imam Bara or the multi-purpose hall will look like. Next slide. This is what the top floor looks like. Well, the admin area is. That's Sayyid Fadl Milani's son, Sayyid Jafar. Let's just carry on. Ayatul Sistani has endorsed this. We wrote to him very early on. Next slide. Next slide. This is what we have collected and spent. Alhamdulillah, we did not have to borrow a single penny from any institution, interest-bearing loan, but we managed to collect this ourselves and we have spent it so far. And we will probably have to spend another 10-12 million to fit out the building. Next slide. This is just to reflect the financial sustainability of this place, that all these are different places from which we expect income generation to cover the annual running cost. Next slide. Next slide. Thank you very much. 1 minute for questions. Anybody got any questions? Because I might leave early. With your permission, I mean, after tea. Anybody, any question? 1 minute? Yeah, sister. So as you may have seen my presentation. Yes. I have shown you the bag. Yes. Yeah. Is there a possibility that we sell or rather we courier? Let's talk about it. It's a brilliant suggestion. Let's talk about that. Yeah. So let's exchange email addresses or WhatsApp. Thank you. Anybody else? Thank you. Thank you so much. Shukran. थैंक यू डॉक्टर निज़ार मिराली। इसके बाद जैसे मैंने शुरू में बताया कि जितने भी हम स्कूल चला रहे हैं, सोसाइटीज़ जो हम चला रहे हैं, ट्रस्ट चला रहे हैं, इसको चलाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की क्या क्या हमारे ऊपर नॉर्म्स या रूल एंड रेगुलेशंस आयद होती हैं, इसके बारे में भी जानकारी हमें होना चाहिए। IRS नजमी भाई यहाँ मौजूद हैं, जो चीफ़ इनकम टैक्स कमिश्नर बड़ौदा और अहमदाबाद थे। अभी थोड़े दिन पहले आप रिटायर हुए हैं और बड़े मुखलिस आदमी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप आएँ और लोगों को बताएं कि इनकम टैक्स की कौन कौन से रूल्स की हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना है हमें।
प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। नाउ जो सबसे बोरिंग सेशन है आज का, बिकॉज इनकम टैक्स इज़ वन ऑफ द इट्स रेलिवेंट ना, तो जैसा कि मासूम भाई ने कहा था उसके हिसाब से, तो बेसिकली जो दो तीन मैंने कंसंट्रेट किया है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, इनकम टैक्स से क्या बेनिफिट उनको हो सकता है, और अगर आप फॉरेन फंडिंग, इफ़ यू आर डिपेंडिंग ऑन फॉरेन फंडिंग, तो उसमें आपको क्या व्हाट एक्शन यू हैव टू टेक। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी स्लाइड. As you can see, tax exemptions require proper registration. You have to apply for to Income Tax Department, Commissioner of Income Tax Exemptions. He'll grant you. Trust versus society. What is trust? What is society? Just layman's this thing. बहुत सारे, जैसे सुबह से आप लोग कई लोगों ने जो इंडिया और इंडिया के बाहर से भी आए हुए हैं, मोस्ट ऑफ us running educational institutions, charitable institutions, we are involved in charitable activities also. तो उसमें what sections are relevant from their point of view, section 1023C exemptions available हैं, and section 11 और section 12 of the Income Tax Act 1961. so इसके अंदर schools, colleges, यूनिवर्सिटीज़, ट्रस्ट, सोसाइटीज़ जो भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसमें वी कैन क्लेम एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 1023C and 11 and 12 if we fulfill the required conditions. Section 1023C is exemption for universities and educational institutions. Conditions हैं कि this should be only solely for education, not for profit. प्रॉफिट पर्पसेस नहीं होने चाहिए, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं, होली और सब्सटैंशली फिनांस बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विथ रिसीट्स लेस दैन or equal to 5 crore, which must be its incidental income from educational activities only. Or Commissioner of Income Tax Exemptions of the area is the authority who grants you approval, so he is the approving authority. Section 12AB, it is effective from 1st of April 2021. Conditions are that 85% of the income must be applied for education purposes, 15% can be accumulated freely, further accumulation allowed hai as per Form 10. Then the next section is section 13 of the Income Tax Act. Exemption can be denied if benefit given to trustees or relatives. So this is a big no-no. Section 80G, donations. We all know about section 80G. Donations eligible for deduction to donors if approved. अगर इसका अप्रूवल मिल जाता है तो जो डोनर्स हैं उनको they will get 50% deduction in their income tax returns, so it is beneficial to them also. Compulsory audit है, must है if basic exemption से ज़्यादा income होती है तो, और ITR 7 is the relevant form for filing the return of income. FCRA, as you all know, it is applicable when foreign contribution is received. Options are FCRA registration. This is valid once you get FCRA registration. It is valid for 5 years and it can be further renewed also. And prior permission is required for a specific donor or project. FCRA के जो conditions और compliances हैं, contributions has to be they have to be received in SBI New Delhi main branch. You have to maintain a separate bank account for FCRA funds. Funds are to be used only for approved educational purposes. Administrative expenses they have been capped at 20%, cannot exceed 20%, and annual return, that is FC4 plus quarterly disclosure on website. Cannot transfer foreign funds to non-FCRA registered bodies. Yani if you
receive funds from foreign entities, then you cannot transfer it to non-FCRA registered bodies. Or you cannot receive funds from banned organizations, countries, then you will lose your registration. Must not mix domestic and foreign contributions. As I said earlier, a separate account is to be maintained for foreign contributions, and domestic contributions and foreign contributions, they are not to be mixed. Yeah. Practical implications इसके हैं, register under section 12B or approved under section 1023C for tax exemption. 85% आपकी income has to be applied to educational activities. आपको books of accounts maintain करने पड़ेंगे, and audits have to be done properly, regularly as per the rules. And FCRA registration for foreign donations or dual compliance, income tax plus FCRA. If you are going for foreign funding, then both income tax and FCRA compliance has to be done. Yes. अगर आपको exemption के लिए, if you want to go for exemption, then you have to apply for registration under section 12A, B and 1023C. As I told earlier also, the commissioner is the approving authority. He will, after going through your application, he'll approve and grant you approval to for exemption of your income. 85% of your income has to be applied for the specified purpose, that is education. Books of accounts has to be they have to be maintained, and regular audit has to be done. And as because it's an annual return, ITR 7 is the relevant tax form to file the return. FCRA के लिए भी you have to apply for registration, prior permission चाहिए, designated bank account होना चाहिए in SBI New Delhi. You can only use it for approved purposes. Administrative expenses to be limited to 20%, and FC4 plus disclosures. I think this is repeating the same thing which I have already told you. Yeah, that's all.